Assalamu alaikum, all of the students and dear parents. Hope you are well. And this is you are watching the YouTube channel of Oxfam Grammar School, and this is Sir Shahzad here. And Sir Shahzad is beginning with the 2-class language work of its school. The school Oxfam Grammar School platform is there. The book name is Grammar and Punctuation Book 1. And the age group 7 plus, key stage 2, and we have to start it. And before starting something new, I would like to share with you this is the part of our syllabus, and page number 5, we shall open the page number 5. This is page number 5, and page number 5 here, it's a exercise regarding making sure match the beginning and ending of these sentences. Write the sentences in your book. The first one has been done for you. Means that all of the work, whatever you are looking here, you have to do in your copy. Here you are matching in the book as well, and even you have seen and you have received from your I can say to you the PDF form notes, and there if the instructions are there, you have to do the work in the book. It's okay, you have to do in the book, but this time with the book, the same work you have to do in the copy even as well. Now I have to take a start. Now I have to take a start from what they are saying. Match the beginning and the ending of the sentence. Because of this is a topic related to writing a sentence. And remember, there are one difference basically in between the phrase and a sentence. Sentence shows the complete sense of the talk, and the phrase doesn't show the complete sense of the talk. Means that, for example, if I am saying to you, stand up. Stand up means you don't know about to whom I say to these words, but if I say, stand up all of you class, so means that we have understood stand up all of you class. So whole of the class have to be stand up, the vice versa with the instruction. While the stand up only means that the only two words, the incomplete words, incomplete sense I have given you, that is called phrase, and the complete sense I have given you, that is called sentence. अगर मैं दो वर्ड कह देता हूँ, स्टैंड अप का मतलब हो गया उठ जाओ, तो इसका मतलब पूरा वाज़ेह नहीं होगा, इसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा उठ जाओ तमाम की तमाम क्लास, तो ये अब समझ में आ जाएगा कि पूरी क्लास को उठने को कहा गया है। तो हम पूरा ये सेंटेंस अदा करते हैं, तो इस सेंटेंस से रिलेटेड है। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने मैच करना है, और बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ दी सेंटेंसेस हमने इसके मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर है a bird flies in the sky, एक परिंदा आसमान में उड़ता है। ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। frogs lives in ponds, फ्रॉग जो है वो पॉन्ड्स में रहते हैं। पॉन्ड्स तालाब को कहते हैं, पानी के तालाब को कहते हैं, उसमें रहते हैं। हैजहॉग एक क्रिएचर होता है, इसकी शेप जो है वो चूहे की तरह होता है, गुलहरी का और चूहे को अगर मिक्सचर कर दिया जाए तो इसके ब्लंट इसकी जो है वो चोंच होती है, जिसे कुतरता है और रोडेंट्स में आता है ये। हैजहॉग हैज़ प्रिकल्स, प्रिकल किसी को जैसे प्रिक करना, इसे हम प्रिक करना कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को जैसे सुई किसी को चुभोई तो हमने प्रिक कर दिया। तो हम क्या कहेंगे जब हैजहॉग हैज़ प्रिकल। बैट्स कहते हैं चमगादड़ को कहते हैं। लुक लाइक फ्लाइंग माइस बेसिकली माउस की प्लूरल है। जब बहुत सारे चूहे हो जाते हैं तो उसकी प्लूरल माइस कहलाती है। चमगादड़ जो है वो किसकी तरह होती है? लुक लाइक फ्लाइंग माइस, ऐसे लगता है जैसे चूहा हवा में उड़ रहा है, चमगादड़ ऐसी होती है। अ टर्टोइज कछुआ मूव्स वेरी स्लोली, टर्टोइज इज मूविंग वेरी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता कछुआ कहते हैं ना, कछुए की चाल यानी आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। कैटरपिलर
चेंज इनटू बटरफ्लाइज। जब बटरफ्लाई जब डेवलपमेंट के फेज में होती है, जब ये पैदा होती है, तो इसका जो प्री मैच्योर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर, उसको आप कैटरपिलर कहते हैं। जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके विंग्स निकलना शुरू हो जाता है, कंप्लीट फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, तो वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो अ बटरफ्लाई अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, हवा में परिंदा उड़ता है। इन्होंने पहला जुमला बनाकर दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस योर पंक्चुएशन, अरेंज दीज वर्ड्स so that they make sentence and remember the full stop and capital letter। हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल लेटर आता है और कोई भी जुमला एंड करने पर फुल स्टॉप आता है। और ये वर्ड्स आगे पीछे मिक्सअप किए गए हैं, जम्बल अप किए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है और आपने इसको ठीक से करना है। जैसे लिखा है स्टिंग वास्प, वास्प कहते हैं जैसे शहद की मक्खी होती है, तो इसको आप रीअरेंज कैसे करेंगे? आप कहेंगे वास्प स्टिंग, वास्प स्टिंग, वास्प के स्टिंग। फिर आगे लिखा है आर बिजी आंट्स ऑलवेज, तो इसका क्या बन जाएगा? आंट्स आर बिजी ऑलवेज, आंट्स आर बिजी। आंट्स पहले सब्जेक्ट आता है, आर वर्ब आता है, बिजी बी वर्ब में आता है, और जो है ऑलवेज हमेशा ये बिजी होते हैं, अदर्स एंड में आता है। नंबर 3 अगर देखें तो लिखा है ग्रो फ्रॉग्स टेडपोल्स इनटू। टेडपोल प्री मैच्योर फॉर्म है फ्रॉग की, फ्रॉग टेडपोल जो है फ्रॉग में बदल जाता है, तो इसका क्या बनेगा? टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स, टेडपोल्स ग्रो करते हैं फ्रॉग में, टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स। नंबर 4 का अगर हम देखते हैं अ टेल माउस अ लॉन्ग हैज, तो इसको अगर हम सीक्वेंस करेंगे तो क्या कहेंगे? अ माउस हैज अ लॉन्ग टेल, एक माउस की लंबी दुम होती है। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर नॉइस बीज अ बजिंग मेक, बीज मेक अ बजिंग नॉइस। नंबर 6 पे देखें देयर स्पाइडर्स कैच इन वेब्स इंसेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? स्पाइडर्स कैच इंसेक्ट्स इन देयर वेब्स। स्पाइडर जो होते हैं अपने इंसेक्ट्स को जो है वो अपने वेब्स में फंसा लेते हैं, जैसे उसके पंजे होते हैं, ये वेब कहलाते हैं। अगर हम देखते हैं तो इन्हें आप वेब कहते हैं, इन वेब को वेब में ये फंसा लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारा पेज 5 कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज का पेज नंबर 8 पर हम आते हैं। तो 8 पर हमारे पास नाउन को डिस्क्राइब किया गया है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ की जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे दरख्त का नाम है ट्री, काउ, फील्ड, गेट, और इस तरीके से हैज, ये हमारा क्या है? These 5 words are name of things and they are all noun, ये सब के सब नाउन हैं। अब now exercise is there, all these things come from cows, ये तमाम चीज़ें काउ से मिलती हैं। मिल्क हो गया, चीज़ पनीर को कहते हैं, बटर मक्खन को कहते हैं, क्रीम को कहते हैं, आइसक्रीम। अब यहाँ पर लिखा है कॉपी एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द नाउन्स अबव। आपने जो है ऊपर के नाउन को इस्तेमाल करते हुए भरना है। आई स्प्रेड बटर ऑन माई ब्रेड, मैंने अपनी ब्रेड पर मक्खन फैलाया। स्प्रेड मीन्स फैलाना। डैश इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी है। क्या ठंडी है? आइसक्रीम इज़ वेरी कोल्ड। व्हाट इज़ इट? आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम इज़ वेरी कोल्ड। नंबर 3 देखें, आई लाइक टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध का पीना बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी एंड डैश आर लवली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही महबूब है मुझे बहुत। यू कैन पुट चीज़ इन अ सैंडविच, आप चीज़ डाल सकते हैं अपने सैंडविच में। तो ये आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पेजेस आपको समझ में आ गए होंगे और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इन पेजेस को बुक में भी करें और साथ में कॉपी में भी करें,
ताकि आपकी कॉपी का काम जो है वो कंप्लीट हो सके और जब आपके स्कूल खुले तो आप तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।